बड़ा वाला नाला पास हो गया है, छोटा वाला ऐसे 2-3 बचे हुए हैं जिसको क्रॉस करना है। यो 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 Good morning friends, day number 14, today is 3rd of August 2019 और टाइम 10 बज गए हैं और हम निकल चुके हैं खारू से। तो कल रात जब हम लौटे तो सब लोग थक गए थे एंड नॉट सरप्राइजिंगली एवरीवन स्लेप्ट ऑफ। मैं तो अपना बालक्लावा पहन के ही सो गया, मतलब थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची थी चेक करने के लिए। सुबह उठा तो जब देखा तो गले में बालक्लावा लटका हुआ था तो दैट वाज द कंडीशन, बट इट्स ओके नाउ। टुडे इज़ अ न्यू डे, ब्राइट सनी डे और आज देखना है कि कितना कवर होगा। हैड अ ब्रेकफास्ट एंड फ्रॉम हियर up till Manali it's 440 kilometers. It's showing 14 hours, almost 14 hours 43 minutes, तो 15 घंटे पकड़ लीजिए। Upshi 6 kilometers, Manali 430 kilometers from here। तो आज जितना हो सकता है उतना कवर करना, मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट अगर एक 300-350 किलोमीटर हो सकता है तो हम लोग कीलोंग पहुँचेंगे और कीलोंग से फिर मनाली एक दिन में हो सकता है। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स नाउ इन अ स्पैन ऑफ 1 hour, विच इज़ वेरी गुड स्पीड आई मस्ट से, क्योंकि रास्ते इतने अच्छे हैं कि आई थिंक देयर इज़ नो इश्यूज़ व्हाटसोएवर। हे मैन, बेस्ट ऑफ लक। So the roads are so nice that you have to just keep going and maintain a good speed, क्योंकि आगे जो है ख़राब रास्ते मिलने वाले हैं। तो I'll try and cover as much as possible on this good roads. Yeah, 24 kilometers from one of the highest passes, Tanglangla Pass. So I think we have almost covered most of the passes in Ladakh region, especially the ones which are well known. We did Zojila Pass, we did Fatula Pass, we did Namikla, Khardungla, and after that we had of course the most dangerous Changlangla. According to me that was the most difficult one, and you must have seen in yesterday's video. So you can see a container जो कि लैंडस्लाइड की वजह से नीचे चला गया है। You can see all that which has come down. Lucky for them that it's a flat plane, so I hope the drivers must have survived. Look, from here they have gone down just because of the landslide. So never stop on these things, and the worst thing that you could do is climb on these. लोग इस पे चढ़ते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। You shouldn't do that because in Khardungla some 10 days ago a group of 7 people had climbed such snow peaks and unfortunately the entire thing came down and none of them survived. In fact 7 में से सिर्फ 6 लोगों की बॉडी मिली थी, एक की बॉडी भी अब तक नहीं मिल पाई। This info was given by the Jawans of Khardungla because they see all the tourists and visitors doing all sorts of such things. तो वो लोग बता रहे थे कि लोग बिना रिस्क को समझे ये सब चीज़ें करती रहती, जो कि सही नहीं है। You should respect nature. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals
collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. Okay guys, so we are at Tanglangla Pass. Altitude is 17,500 feet, which is as good as the Changla and the Khardungla. So now I think the descent will be very fast. मुझे तो flat plains दिख रहे हैं, तो that is good thing. We will be able to cover good distance. तो चलिए चला जाए. Debrink 23 kilometers. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Look at that guys, ऐसे लग रहा है tombs हैं. Looks beautiful. So just reached Pang और I grabbed 2 sneakers, had some water और अब जाना है सरचू. यहाँ से ढलान है पूरी. I think we'll be able to make it to Keelong, और अगर वहाँ से टाइम बनता है तो probably मनाली, probably, but let's see how it works out. So अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट करूँगा 5 minutes एंड फिर चलते हैं. बाकी के लोग अभी तक नहीं आए हैं. होपफुली दे आर कवरिंग गुड डिस्टेंस, क्योंकि मैं तो बहुत फास्ट आ गया हूँ. तो लेट्स सी, आई विल मीट देम इन कीलोंग प्रॉपर्ली. लेट्स सी. Okay, so just got my self checked at the medical aid camp, क्योंकि सांस थोड़ी सी चढ़ी हुई थी. And the pulse rate is somewhere around 115, but the SpO2 is quite good. It's around 89 और टाइम 2:15. तो सांस तो चढ़ी होगी, क्योंकि ये जो अल्टीट्यूड है, this is maintained continuously since morning and it will be there till Sarchu. आप देख सकते हैं, I am breathing very heavily and the pulse rate is also very high. So we are at 15,280. So after Tanglangla, altitude is maintained quite flat, but यहाँ पर because of the long duration of the altitude and the flat plane, यहाँ पर थोड़ा सा सांस चढ़ी हुई होती है. But it's okay as long as the oxygen levels are good. 89, yeah, I think will do. और अब बस we have to go till सरचू. सरचू तक थोड़ी चढ़ाई है. उसके बाद हम लोग उतरेंगे सीधा नीचे 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 अप टिल जिस्पा एंड मनाली. सो ये है जुगल ब्रिज.
पूरे लद्दाख रीजन में आपको ऐसे अनगिनत ब्रिज मिलेंगे। Some keep a diary, seems like a fantasy, but it may require some love and desire, something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and promise, but it's hard just to start it. Ooh, no, no, no. Ooh, no, 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 no. No, no, no. Okay, so we are at La Chungla Pass. It's at 16,600 feet. Yeah, 16,616 feet. And इसके बाद आएगा सरचू. Weather is very pleasant क्योंकि धूप भी उतनी ही है जितनी की ठंड. Sun and moon, we like to see each other shining bright. We have tonight, tomorrow and the other days that follow. We have to try to make things right. I'll sing to you like ooh, no, no, no. Ooh, no, 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 no. No, no, no. Okay, so 4:30 and Sarchu is just 10 kilometers away now. और आप देख सकते हो कि कितनी हसीन वादियाँ हैं और क्या नज़ारे हैं सरचू पहुँचने से पहले. I am just amazed. I am happy and content with Ladakh up till now, and still we have Jispa, Keelong and Manali to come. So अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आने वाला है, रोहतंग पास आने वाला है. ओके, तो हम पहुंच गए हैं सरचू और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय नाश्ता करूँगा. एंड वी आर गोना वेट फॉर द रेस्ट ऑफ देम. आई एम जस्ट गोना कॉल देम अप फर्स्ट एंड आस्क वेयर दे आर, एंड इफ दे आर बिहाइंड देन maybe I'll move forward and let them join me in Jispa or Keelong. Let's stop here. Okay, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, तो आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट माई फ्रेंड्स. एंड द अदर इशू इज़ दैट 4 बजे के बाद यहाँ पे जो है नालों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो इट्स वेरी रिस्की. प्लान ये है कि आई एम गोना हैव माई ब्रेकफास्ट, वेट फॉर माई फ्रेंड्स, और क्या कर सकते हैं, एंड देन डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन नेक्स्ट. और नाउ आई एम लिटिल हंग्री क्योंकि लंच नहीं किया है कंटिन्यूस. सुबह जो 10 बजे से स्टार्ट किया है, आई थिंक नाउ इट्स 4:45. 2, 4, 6, 6.5 घंटे की राइड हो गई है कंटिन्यूस. तो आई एम लिटिल टायर्ड, सो लेट्स टेक रेस्ट एंड देन डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन. पहले निकल था, फिर मुझे मारा था. Okay, so I'm having my Maggie. जी जी, थैंक यू आंटी. ओके, तो सब लोग आ गए हैं. दीपक भाई कैसा था आज का?
आज का अच्छा था। अच्छा था, रास्ते अच्छे थे। बहुत बुरा था भाई। हाँ, रात का तो याद मत दिलाना। अमोल क्या हो गया? मुझे तो नगर जैसा ही लग रहा है सब कुछ। तू डेंजर, तू ह्यूमन है रे। तो अभी जाने वाले हैं जिस्पा, और जिस्पा अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे। दीपक भाई थोड़ा लेट आए और अमोल सर भी थोड़ा लेट आए, तो थोड़ा आराम कर रहे हैं। सो वी हैव टू एंटर आवर बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द नेम एट सरचू. सो दिस इज द चेक पोस्ट. Look at the view, guys. Isn't it beautiful? Yeah, it is. No doubt whatsoever. पर अब ठंड बढ़ रही है. Everything good? Not starting, all good. Jump start दे दिया. अच्छा, हो गया अभी? Okay, okay. Do you want us to wait? Would you want us to wait? No. Is it okay? No, we are a group of 4 people. We can wait for you. Okay, we'll come. हाँ? Are you sure? क्योंकि आगे नाला वगैरह है. हाँ, तो नाले के इधर मिल जाएंगे अब. यही नाला है, इधर ही है. किधर है? 5 मिनट में. अच्छा, आगे ही है. हाँ, आगे ही है ना. अच्छा, वो जो ट्रक रुके हैं. अच्छा, ओके ओके फाइन. ओके, तो अनदर वाटर क्रॉसिंग. One cross successfully, and now this is the bigger of the lot. What happened? कार नहीं जा रही है. कार तो नहीं भाई. यहीं फंस गई थी, वापस ले जाए. तो इन्होंने इनके भरोसे ही तो हम आए हैं. Look at the moon. It's looking so beautiful. Man, it's like fucked up. So let's do this one by one. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Here क्या? Thank back. Okay, let's go. ओके, सो बड़ा वाला नाला पास हो गया है. छोटा वाला ऐसे 2-3 बचे हुए हैं जिसको क्रॉस करना है. यो 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 यो. ओ फक.
तो जैसे तैसे आज गाड़ी हमने निकाली, बहुत मज़ा आया। और आज हम रुके हैं इस टेंट में और कल सुबह हम निकलेंगे मनाली के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अब एक टेंट में रुक गए हैं और इसका जो हम नाला क्रॉस किए थे उसको पागल नाला बोलते हैं। बहुत बड़ा है वो। हाँ, बहुत बड़ा नाला था। हम लोग अभी हिमाचल प्रदेश में आए हैं। हाँ, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रुके हैं। नाला जस्ट कितना 50 मीटर है नाला पीछे, ये 50 मीटर 50 मीटर पे वो पीछे नाला है और इनका यहाँ पे टेंट है। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी जगह पे इन्होंने जो है टेंट लगाया है। और आप देख सकते हैं सब लोग सांता क्लॉज बन के बैठे हैं। भगवान मिल गए, भगवान। तभी बारलाचा क्रॉस आता और वो भी बर्फ़ की चोटी होती, तो इट्स ओके। कुछ अलग करने को मिल रहा है, इसकी खुशी है। और आज का दिन बहुत एडवेंचरस था, रियली एडवेंचरस, रियली नाइस। आप ये टेंट देख सकते हो, दिस इज माय शॉपिंग। ये टेम्परेचर अभी है जो हमने पूछा, अभी यहाँ पे 0 डिग्री है टेम्परेचर। हाँ, 0 डिग्री चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बर्फ़ की चोटी के बहुत करीब में रुके हुए हैं। तो पूरी तैयारी के साथ आओ, वरना मत आओ। हाँ, आना है तो पूरी तैयारी के साथ आना है और गर्म कपड़े लाना। मौसम कोई भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बारिश में आ रहे हो, कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं चलता। ये लद्दाख है, यहाँ मौसम जो है इंसान की फितरत से ज़्यादा जल्दी बदलता है। डायलॉग हो गया तो चलो अपना अपना मैगी सब लोग, गर्मा गर्म मैगी लगाओ गाना, लगाओ टेंट, माय टेंट, गाना लगाओ। अभी हम लोग गाना सुनने वाले। सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स। बहुत ही बढ़िया बना है। अमेजिंग रिस्पाइट इन दिस वेदर। यस मैगी। अमोल, हाउ आर यू? बड़े भाई बहुत बढ़िया। गाना भी चल रहा है, देखो सर्दियों में गाना चल रहा है। रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है। So good morning guys, it's 6:30 in the morning and you can see ये हमारा टेंट है, ये हमारी बाइक्स हैं और ये हमारे आसपास के कुछ वादियाँ, बर्फ़ वाली चोटी। और आप देख सकते हैं कुछ राइडर्स वगैरह भी रुके हुए थे यहाँ पे। और ठंड यहाँ पे रात को 0 डिग्री था, अभी भी काफ़ी ठंड है। और जस्ट उठे हम लोग और अभी थोड़ा फ्रेश होके चाय वगैरह पी के निकलेंगे मनाली की तरफ, क्योंकि जितना जल्दी आज कवर करें उतना कम हमको नालों में पानी मिलेगा। चलिए मैं आपको टेंट के अंदर दिखा दूँ। अदरवाइज़ ये देखिए कितनी ठंड है। तो ये है हमारा छोटा सा टेंट और अमोल उठ गए हैं और मामा उठ के फिर से लेट गए हैं और वहाँ पे हमारी चाय बन रही है। और आप देख सकते हैं अच्छे खासे ब्लैंकेट्स थे और सोने के लिए ये हमारा मैट्रेस था। सो टफ कंडीशंस बट समटाइम्स यू हैव टू मैनेज। Okay, so this was the yesterday's नाला और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे रुके थे। हाँ, ठंडी रात को काफ़ी थी और ये हमारी बाइक्स हैं। तो वी हैव कोल्ड स्टार्टेड ऑल द 3 बाइक्स और अब विदिन 5 मिनट्स विल बी लीविंग। धूप निकल चुकी है और बस निकलने वाले हैं। Look at this beautiful view from morning at बारालाचा पास। कितना खूबसूरत है, झील है और वहाँ पर धुंध, बादल और यहाँ की चोटियाँ और वादियाँ।
Okay, so only one petrol pump at Tandi, and almost कल खारू से एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिला है. तो now it's time to fill the petrol. I had carried those 5 liter cans और उस पे ही गाड़ी यहाँ तक चली है. तो good that came to use. तो अब टैंक फुल करा देते हैं. So the road to Manali is really lit up with amazing sceneries, and the landscapes are exceptionally beautiful. Have a look at that. I mean, पहले भी ऐसे देखा है, but it's new every time. Wow. So we have just crossed Tandi and approaching Manali. अभी रोहतांग पास आएगा कुछ ही देर में. So after we cross that, it's straight down up till Manali. और रास्ते थोड़े से ख़राब है, तो धीरे धीरे चलेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं है. और यहाँ पे रुक के एक फ़ोटो खींचते हैं. वाओ, look at these, so scenic. As I started to descend, I realized that we had come to the end of a beautiful journey. Part of the journey is the end, they say. What is and will always be remembered as a dream that came true. And at the end of the journey, all I can say is that somewhere I was able to rediscover myself. I was able to conquer my fears, and yes, most importantly, I was able to fly. How do I want to be remembered? A part of a gang with 4 crazy travelers who went on a journey unseen. I may go places, but my first Ladakh trip will always be special. This is my Ladakh story. What's yours?